Hello, myself Sagar Malpure, CMA Sagar Malpure, Chairman of Pimprin's Akodi chapter. I welcome you for the today's seminar on the Kautilya Arthatantra. So today we are going to have our one of the esteemed speaker, CMA Dhananjay Kumar Vatsan sir with us. Basically, Dhananjay Kumar Vatsan sir is a past chairman of Pimprin's Akodi chapter. He is a ex-Navy man and he has also completed his engineering degree. He was associated almost for more than 20 years with the Navy, and after that he completed his CMA, and now he is acting as a practicing cost accountant. So today I welcome you all for this seminar, and I request Vatsan sir to take the stage and let us start with the today's topic. नमस्कार. बेसिकली टुडे सेशन जो है हमारा वो कौटिल्य अर्थतंत्र. बेसिकली कौटिल्य बिफोर मतलब BC he was a professor of political science in Takshila, and his parent and forefather, all these people were learned person of Arthashastra. So in his family background, lot of things was compiled. So what happened when he was a professor in Takshila, the foreigner invader attacked India. And that time he tried to take help from some of the king, but they didn't do the things. So he realized that necessity of a strong kingdom in India, and from Takshila itself he started the movement. And when he became the Prime Minister of Magad, that time he compiled the Arthashastra. So Arthashastra, what he is compiled is not only his thing, even he has taken all the reference of previous king, whatever the other learned people have told, and from best of that he is written in the form of treatise. So other thing is also there, but it is not in a very formulated way. But Arthashastra is in a very formulated way. So today I will go through the same sequence, how it has evolved and what all the things has been happened in this. So we will not try to keep everything should be completed. We'll go step by step. If it is understood, we'll move ahead. If anybody wants to do some addition to that, it is welcome, because I am also a student of this. So I do not claim that I know everything. So if you think person want to add something, we can do so. Okay. So the whole thing has been divided. First is the introduction and evolution of Arthatantra. It starts from the Manu. Manu was the first, last Prajapati. First Prajapati was Brahma. So he made Ichwaku as a king, and to his son he gave lot of things, how to be ruled, what all things needs to be done. So that is called the Manu Smriti. So basically you can say it is the start of social and political life in India. Then the Prithu was a king. On his name, the earth is called Prithvi. So it was a total revolution of economy. So we'll discuss that. Then the Ram, when he become king, he has also taken a lot of things from many places and tried to establish a very ideal kingdom. Things deteriorated, and when we called up that Sri Krishna time, it was more of a turmoil till he departed from this world. Then comes the period of Kautilya, where he has taken the best thing of all the people and compiled the Arthashastra. Arthashastra became a guiding book for many years till the foreign invaders started coming here and started implementing their things. In the Kautilya,
they have mentioned like budgeting, accounting, pricing, costing, etc. Many things has been compiled in that time itself. Then what finally we want to conclude with this, it is basically some of the quote only, and then we can do the question and answer. So if we try to understand what happened worldwide. So worldwide basically there are a three center of Savyata and Sanskriti. So one was the Abrahamic. Today Israel is what they call the epicenter of that, Jerusalem. And another was Bharat, and third is China. There was some other indigenous thing was there, but that basically is no more longer existing. So either it has been taken over by the Christianity or Islam or the communism. So these three things more or less has eaten away every other culture and civilization or whatever the Arthatantra they had, indigenous. So basically, if you called Abrahamic, the thing is that they believe in the one birth and one God. It says that there is, after this, there is no birth, the dead body will rest till the final day come, and the final judgment day, they will be given the hell or heaven. And the formula is that ticket to heaven is whatever religion they are teaching, you have to believe that. That is sufficient to go to the heaven. The original form was still existing is Jews. Then that become the Christian. Christian propagated through the Pope, and they have their things like church, father, all these people. Later on there was a big fight, and that fight was basically for the separation of religion and state. Then further development took place, the industrial revolution in Europe, and that given the two type of separate economic system, one is the capitalist economy and another is the communist or socialist economy. Third is the Islam, Khalifa, Imam and Masjid. These are the three things, and their main thing is like one Allah, one book Quran, and Muhammad Paigambar, Zakat, like that. They are the five important things, but they did not talk much about the economic development. So what they try to believe, okay, you invade some persons, take their property. So that is the things of becoming rich, like called the Male, something is there. Okay. So these are the things. Now, if you come to India, what is believed that it is a rebirth and theory of karma. So what a person is, whatever you are doing, good or bad, that will remain for ever, and you will be getting the punishment or reward for that. Then it's talk about the balancing in life, like dharma, artha, kam and moksha. So all the four has to be balanced. The king is considered to be a representative of God, and he should act like a trustee. King is not the owner. So as a trustee, he will be also getting some salary. Of course, he is having the more power. And basically, the state or the king has been considered as a joint ownership, like person, wealth, talent, innovation, everything belong to society. So even today, like somebody become very talented, so everybody claim he belong to my community or he belong to my village. So that comes basically from that. All the special things belong to society, they don't belong to only individual. China, much information is not available because mostly the thing has been taken over by the socialist, the communist government, and they wiped out the old thing. But whatever available, that is the
believe कि this China and the whoever believe that कि it is a kingdom of God. So we don't need anything from outside. So whatever is available, it is available. So whenever they do the trade, they take only gold. So initial phase, it was very difficult for Britishers to do trade with the Chinese. Ultimately, they launched the opium in China and forced the opium because they become addicted to opium. And that was the supply from the outside world, and whatever they want to take it from the China, they can take it too. So what their belief is there, ki if there is any bad things or things are not going good, so the region is king, because his pap or punya is being faced by the citizen. So if there is a problem, first thing, remove the king. So king is always be on the toe. Okay, I should not do the wrong things. So like that, that was the system followed in the China. Confucius was the main philosophy. Now we'll go discuss more about the Bharatiya Arthatantra. So here, if we talk about Bharatiya, there is the Dharma. Dharma is the top. उसके बाद आते गुरु, गुरुकुल and Shastra. Shastra means book. And Guru, Gurukul is the direct communication, what is right and what is not right. So if there is a problem, confusion, it will be referred to Guru or Shastra. State and king, it are used interchangeably. Means if you want to say about the king, they can say state, or if it's state, means it is the king, because the also there is a concept of emperor. Means who will rule the king? The emperor will rule the king. So the concept of king. State. So state basically follow the concept of artha. Life has been divided like 4 purushartha. 4 varna, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. 4 ashrama, Brahmacharya, Girhasth, Vanaprasth and Sannyas. Then 3 guna, Tamoguna, Satoguna and Rajoguna. So like that, life has been divided into different parts. Then the marriage or alliance, there has been accepted like 8 types of marriage. So even whatever marriage is taking place nowadays also, you can formulate in one of these 8. And the 8 type of son means basically the theory of inheritance. If a person die, who will inherit the things? Who will have the first right? Who will have the second right? Like a person who is teacher, so his student is also like his son. For a king, all the citizen is like his son. So like that, there is a 8 type of inheritance they have decided. Then it was the various jati. So jati is nothing but a basically professionals. So a person applies in a one type of work, they will be considered in that particular jati. And there will be a settlement, like it's called the smallest unit is village. So in a village, वो एक रेशियो होता था कि कितने मतलब कृषक होंगे, उसमें कितने ये प्रोफेशन के होंगे, कितने ये प्रोफेशन के होंगे, कितने ये हर एक प्रोफेशन का एक रेशियो बना होता था. And it is more like a cooperative. So what was the impact of that? Bharat was the leader in military might. It was highest in spiritual growth. In wealth, one of the wealthiest region. And knowledge base, research, innovation was, everything was super. Still, we were ruled by the many invaders, so that is a secondary things.
sometime later we can discuss how it is happened. Okay. The other thing was that if you study the Indian economy, there was no like boom or recession. There was nothing like a inflation. So these things was not there in the old system. Then like Diwaliya, temple, festival, tirth, these were the integrator of society and also regulator of earth. बेसिकली लेके जैसे अभी भी है कि वो अगर दिवाली का या दशहरे का टाइम आता है तो यहाँ पे परचेजिंग ज्यादा होता है. तो बेसिकली क्या है कि अगर वो रिसेशन का भी पीरियड आ रहा है तो मनी का फ्लो वहां पे बढ़ा देते हैं. जैसे अभी वो कुंभ मेला हुआ तो बोलते हैं कि 4 लाख करोड़ का वहां पे बिजनेस हुआ है. तो बेसिकली क्या है कि ये चीजें क्या होता है कि अर्थ को बढ़ाती है, सप्लाई ऑफ मनी. एंड वो क्या है कि हर एक कॉर्नर पे करते हैं, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो साउथ इज लाइक नासिक, उज्जैन, हरिद्वार. तो लाइक इट्स गोज टू द डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस एंड सभी लोग एक जगह पे जमा होते हैं. सो दिस आर बेसिकली ऑल दिस इज द regulating indirectly the earth and also integrating the society. What was the thing like? Once upon a time we were the 2/3 of the world economy, which reduced to half. Before the Mughal came, it was 1/3 of the world economy. When Mughal declined and Britishers came, that time it was the 1/4. And when the Britishers left, it was around 1.1% to 2%. Between that, it was there. Now again, cycle has restarted, and we are today, for purchasing power parity, we are the 3rd largest economy, and otherwise it is the 5th largest, but very close to become the 3rd largest. So with developing our own system, again we are started to trying to catch up, but it is long time to go. But one positive thing is that 800 years of dependence, still our system and things are surviving, and it has crossed all the milestone, and now it is on the upper circle. So now I'll be discussing the evolution of Kautilya Arthtantra. Basically, this side is the people who are the learned people, but they have not done anything practically. They given certain theory and it is being followed by somebody. Whereas that side, it is the king who are learned and they contributed directly. So they were executor as well as the person who was given the philosophy. So this side is the Chita Manu. From his we call Manushya ya Manav. So that is basically the people who are following the Manu thing is called the Manav or Manushya. Brihaspati, he was the guru of Devata. So he gave written the book of Dharma Shastra. Parasar, he has further amplified. Pisuna, he is also called the Sukracharya. So he gave the Niti Shastra. So Niti Shastra is basically balancing of dharma, arth, kam and moksha. So how to balance all these things was given in the Niti Shastra. These are the other learned people. From being a king or who had done the practical things, one is the Prithu. Second was is Parshuram and Sahasrabahu. Basically whatever the Prithu gave, so Sahasrabahu was a king. So what he did, he became like an autocrat. And he acquired all the power. And once he tried to divert the flow of Narmada. And that time, Jamdagni, he was the father of Parshuram. He had a dispute with that. And because of that, he killed Jamdagni. So, Parshuram became against to that. He killed Sahasrabahu
and all the land, whatever he has liberated, gave it to the Kashyap Rishi and tried to re-establish the Prajapati system. But that did not work well. But of course, it was a reversal for becoming an autocrat. Then it's the Yayati. Yayati was a forefather of Pandava and Kaurav. So basically, he had the 6 sons. So one son was the established Ganatantra. Another followed the Rajtantra. And some autocracy, like they become the king of Maliksha, some become the king of Yamuna. So like that, he has established different type of kingdom or different type of tantra. Like Yadu, he was the first of the Yadava. So all they are the part of the Ganutantra. Means Sri Krishna also in the part of Ganatantra. Sri Rama, he was the Ichwaku leniency and he became the king. I will discuss in details. Sri Krishna and Kautilya also will discuss in detail. One book is Ramayana and Mahabharata. So this book is basically taken the extract from the Veda, Upanishad, Artha, and all the Purushartha, everything they try to compile in one book in some poetic format, so that it can be passed on from generation to generation. So what Manu basically teach, he teaches the dharma, artha, kama and moksha. He said that this is the 4 purushartha and everybody try to work for one of these. Either he will be working for dharma, or he will work for moksha, or he will work for enjoyment. Kama is nothing but enjoyment of life. And moksha is getting above all these 3. In the personal, he talk about the Atma, means individual. Then it is the Kutumba, family. Then it is the society, Sarva. And Desh. What we called Desh today is a country. But that time, Desh is called the one geographical entity, where same type of food is being produced, similar language is being spoken, that culture is same. So all these type of things, entity was like a Vidarbha. We can say that this is one Desha. Marathwada is another Desha. Konkan is another Desha. So like that, these are the Desha. And then the Rashtra. Rashtra will be combination of all this Desha. So that will be ruled by a Samrat. Like Rama was the Samrat. Yudhishthira was the Samrat. Mandhata was the Samrat. So there are different Samrat who will rule the king. Now this is the very important thing of Gurukul. Gurukul was a highest form of education. How it was run? तो बेसिकली जो गुरु होते थे, गुरु की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी. तो जितने भी जो स्टूडेंट होते थे वो जाते थे और वो भिक्षा मांगते थे. तो भिक्षा मांग करके लाते थे. दे विल गिव इट टू द हेड ऑफ दैट गुरुकुल और उसको फिर गुरुकुल में प्रस्तुत करके सभी को मतलब भोजन वगैरह का इंतजाम करते थे. तो ये भिक्षा का जो सिस्टम था इसमें कुछ खासियत थी. खासियत क्या थी कि पहली चीज कि whoever is the person, whether he is a king or a professional or normal person, उसकी सोच क्या होती थी कि मुझे ये सोसाइटी ने दिया है तो हमको ये सोसाइटी को रिटर्न बैक करना है. क्योंकि गुरुकुल में कोई फीस नहीं था. गुरु शिक्षा देता था फ्री में और लास्ट में उसको बोलते थे कि गुरु दक्षिणा मीन्स वन टाइम वट एवर ही विल गिव दैट इज द ओवर एंड वो फिर होता था कि आप सोसाइटी को रिटर्न बैक करो. सो दैट इज द वन थिंग. सेकेंड थिंग, जब वो भिक्षा के लिए जाता था तो क्या करता था, जो लोग होते थे उसके जहां भी गया तो वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रही है, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है.
हर तरह का इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता था। और जब वो वापस आता था भिक्षा देने के लिए, तो उस टाइम पे गुरु को बताता था। गुरु ये सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके उनको डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी होती थी किंग के पास, तो वो किंग को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस और इंफॉर्मेशन वो पास ऑन करते थे। तो जो एक फीडबैक सिस्टम था वो प्रॉपरली वर्क करता था। तो ये जो गुरुकुल होता था बेसिकली वो किंगडम से इंडिपेंडेंट होता था। जैसे तक्षशिला का स्टोरी है कि जब चाणक्य वहां पे थे, तो जो तक्षशिला का राजकुमार था उसको स्कूल में एंट्री नहीं मिली, क्योंकि उसका जो क्वालिफाइंग मार्क जो था या टैलेंट होना चाहिए था वो मीट नहीं किया, तो उसको वहां एंट्री नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि वो राजा के कंट्रोल में नहीं होता था। वहां पे एक कॉमन आदमी हो या एक राजकुमार हो, जैसे आपने सुना होगा कि कृष्ण और सुदामा की कहानी, तो दोनों एक ही रूम में रहते थे, एक ही चीज को शेयर करते थे। वैसा नहीं कि ये रॉयल फैमिली का है तो इसको अलग ट्रीटमेंट होगा, ये साधारण है तो अलग सेम ट्रीटमेंट। उसमें जो एंट्री मिलती थी पढ़ने के लिए वो दैट वाज बेस्ड ऑन टैलेंट, कि उसकी क्या टैलेंट है। 64 टाइप्स ऑफ एजुकेशन, अभी उज्जैन में जाएंगे तो सांदीपनी आश्रम है, तो वहां पे मार्क किए हुए कि क्या क्या टाइप का एजुकेशन था। तो मतलब जितने भी जो प्रोफेशन है, डांस है, म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सब वहां पे वो पार्ट ऑफ करिकुलम था अंडर 64। एक और चीज क्या थी खासियत गुरुकुल का, कि वहां पे प्रैक्टिकल था विथ थ्योरी। विथ थ्योरी कहने का मतलब कि जैसे एग्रीकल्चर है तो गुरुकुल के खेती होते थे, तो स्टूडेंट को वो खेती जाकर के खुद करना पड़ता था। तो उसकी जो कैसे क्या मतलब होगा वो सारी चीजें उसको प्रैक्टिकल वहां पे मालूम होता था। तो ऐसे ही हर प्रोफेशन के लिए उसको वहां पे प्रैक्टिकली कंप्लीट करके मतलब इट इज यूजफुल टू सोसाइटी, वैसा उसको प्रोड्यूस करना पड़ता था। तो जो वहां से वो पास आउट होके निकलता था तो इज रेडी हैंड, जैसे हम अपने अभी करते हो 1.5 years का इंटर्नशिप, तो उस टाइम पे वहां पे वो एज ए पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। इससे फायदा क्या होता था कि जो किंगडम होते थे वो किंगडम को मैन पावर या जो बिजनेस था, बिजनेस हाउस को स्किल्ड मैन पावर इजिली अवेलेबल होता था। उसके लिए उनको कोई फीस नहीं देना पड़ता था। ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करता था। ऑलरेडी हमने बोला बहुत सारे जैसे युद्ध हो गए या कोई सिचुएशन हुआ तो उसका भी इंफॉर्मेशन ये यहां पे कंपाइल होता था। अभी जो हम बात करते हैं एआई की, कि वो इंफॉर्मेशन कंपाइल करेंगे और फिर इंफॉर्मेशन से हम ट्रेंड निकालेंगे। सो ये टाइप की चीजें जो था वहां पे उस टाइम पे मैनुअल वे में वो करते थे। किंग को सजेशन देना, जो भी गुरु होता था वो सबके लिए एक्सेसिबल था। कोई भी नॉर्मल आदमी भी जाकर के वो उधर मिल सकता था, अपनी बात बता सकता था। तो इट वॉज ए गुड नेटवर्किंग आल्सो। कोई अपनी कास्ट या वर्ण अगर चेंज करना हो तो मीडियम क्या था, वो एजुकेशन था। जैसे अगर कोई सुतार है, सुतार अभी लोहार का काम करना चाहता है, ब्लैक स्मिथ होना चाहता है, तो वहां पे जाकर के वो लोहार की ट्रेनिंग लेगा, वो लोहार हो गया तो फिर वो उस प्रोफेशन को अपनाएगा। बट इट वॉज पॉसिबल दैट टाइम। एंड तो फीस नहीं था, इसलिए सोसाइटी के प्रति लोगों का ऑब्लिगेशन एक फील होता था एंड इट वॉज द बाइंडिंग। अभी हम आएंगे किंग पृथु। किंग पृथु से पहले क्या था कि वो कल्टीवेशन नहीं था, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं थी। मतलब ऐसा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में फ्रूट्स हो रहे हैं, कुछ ग्रेन उग रहे हैं, जिसको चाहिए अपना जितना चाहिए जाके लिया, खाया पिया, काम उसका हो गया। स्लोली क्या हो गया कि पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगा और उस बीच में कभी वो ऐसा ड्राउट आ गया।
तो ड्राउट आ गया तो क्या हुआ कि फ्रूट्स आए नहीं, जो अन्न थे वो हुए नहीं। तो पृथ्वी के जो ये था असेंबली था, वहां पे क्वेश्चन आया कि आखिर ये अनाज क्यों नहीं हो रहा है। तो किसी ने आइडिया दिया कि ये जो अर्थ है ये हमारे अन्न की चोरी कर रहा है। तो क्या करने का, तो चोरी कर रहा है तो धरती को खोदो। तो वो जहां तहां वो धरती को खोदने लगे, वो निकालने के लिए कि वो अनाज किधर अर्थ ने हमारा चोरी करके रखा है। तो उसमें रिवोल्यूशनरी बहुत सारी चीजें हो गई। एक रिवोल्यूशन क्या हो गया कि उसके बाद 1-2 साल के बाद वो खेती काफी ज्यादा हो गई। तो लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर हम अर्थ को थोड़ा खोदेंगे, मिट्टी को पलटेंगे, तो अनाज ज्यादा उगता है। दूसरी चीज क्या हो गई कि उन्होंने जो खोदा तो उसमें बहुत सारे जो कंद बोलते हैं, ईटेबल लेकिन ग्राउंड के अंदर होते हैं, वो लोगों को मालूम पड़ा कि ये चीजें जमीन के अंदर होती, ऊपर नहीं दिखती है। तो वहां से उन्होंने निकालना चालू किया। तीसरा था बहुत सा माइंस था, तो जब उन्होंने खोदा तो उनको अंदर से माइंस वगैरह भी निकले। तो ये कहने का मतलब कि एक तरह का बहुत सारा वो रिवोल्यूशनाइज उनके टाइम में हुआ। उन्हीं की एक स्टोरी है कि वो एक काऊ के पीछे, मतलब जंगली काऊ थे, उसको मारने के लिए पीछे जा रहे थे। तो क्या हुआ कि सडनली गाय के जो बछड़ा था उसने उसको आवाज दिया। तो जो गाय भाग रही थी वो वापस पलट गई, बिना ये बॉदर किए हुए कि ये आदमी हमको मारने वाला है या मैं मर जाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं। वो पलट गई और भागी अपने वो बछड़े के पास। तो ये चीज पृथ्वी को खटक गया। जो मारने के लिए जा रहे थे, जब गाय पलटी तो हो गया, अरे क्या हो गया अचानक इसको, अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये भाग रही थी, अभी साधारण पीछे क्यों आ गई। तो जब वो बछड़े के पास गई तो उन्होंने रियलाइज किया कि इंस्टेड ऑफ एक को पकड़ने का, उसके बछड़े को पकड़ के अपने पास रख लो। तो गाय है दिन भर इधर उधर कहीं भी घूमेगी, शाम को और सुबह वो आ जाएगी अपने बछड़े के पास। तो इस तरह से उन्होंने कंसेप्ट लाया, मतलब एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का, कि उसके जो बच्चा है उसको पकड़ के रखो अपने पास, और उसको पकड़ना असाधारण बात है। तो ये मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके या इस इंसिडेंट्स के बाद वो चालू हो गया। तो जब ये जो इवॉल्व हुआ तो जो एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स था, एग्रीकल्चर हुआ, माइनिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली टूल एंड वेपन्स मेनली पहले मैन्युफैक्चर होते थे, टेक्सटाइल हो गया क्योंकि क्लोथ सबकी जरूरत थी, एनिमल हस्बेंड्री, घोड़े, हाथी, गधे, बकरियां, भेड़ वगैरह ये सब का, डेयरी, काऊ बुफेलो जो कि दूध देते थे और उनका मतलब फर्दर प्रोसेसिंग लाइक बटर, मिल्क, छाछ, ऑल दिस थिंग्स, लेक एंड वाटर रिजर्वायर। तो एक तो लेक हो गया मतलब आर्टिफिशियल, और एक लेक हो गया नेचुरल। और पानी का जो नदी का फ्लो था उसके ऊपर रिजर्वायर बना करके पानी को ब्लॉक करना और उस पानी को यूज करना खेती के लिए, कैनाल के थ्रू या डायरेक्टली। उसमें फिशरीज वगैरह का प्रोडक्शन चालू हुआ। देन आल्सो बिकम द ट्रेड। सो ट्रेड मीन्स टेकिंग वन पर्सन कुछ आइटम देता है और दूसरे से लेता है, तो ये जो चालू उसके बाद हो गया। और जब ट्रेड चालू हुआ तो उस टाइम पे नेसेसिटी फील हुआ ट्रांसपोर्टेशन का। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम पे डेवलप हुए, एक हुआ रोड और दूसरा हुआ थ्रू रिवर एंड आल्सो थ्रू सी। जैसे मुरवीपट्टनम जो भी बोलते हैं, तो बेसिकली इट इज मेंशन इन इवन इन द रामायण। सो उस टाइम पे भी वो पोर्ट एग्जिस्ट करता था और वो यूज करते थे। एंड गुरुकुल, दिस इज फॉर द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। सो ये सारे चीजें इकोनॉमी के पार्ट थे। और जो उसके रिसोर्सेज जो उसके लिए यूज होते थे, पहला था वो
अर्थ मीन्स जमीन, तो उसके पार्ट हो गए एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। देन मैन पावर, मैन पावर भी जो है था कंसीडर किया है कि जो हमारा वेल्थ है उसका एक इंग्रेडिएंट है, तो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल वगैरह वो चालू हुई। देन एनिमल पावर, एनिमल पावर एक तो एज ए ट्रांसपोर्टेशन उसको यूज करते थे, मिल्क वगैरह के लिए यूज करते थे, क्लोथ के लिए यूज करते थे, उनके छाल को डायरेक्टली यूज करना या उलेन वगैरह जो बनते थे, तो ये सब चीजें उससे चालू हुआ। वाटर बॉडी, ये हमारा लेक, डैम वगैरह हो गया फिशरी वगैरह के लिए। देन रियलाइज किए कि जो टाइम है एक बहुत बड़ा फैक्टर है इकोनॉमी में। लाइक कोई चीज आज जैसे एक फ्रूट है वो आज पका हुआ है, लेकिन 10 दिन के बाद वो उस स्टेज में नहीं रहेगा, तो इट वॉज रिक्वायर्ड टू स्टोर इट प्रॉपरली। तो जो स्टोरेज हाउस एंड वेयर हाउस वगैरह उस टाइम पे बनाए गए। करेंसी जो था इवॉल्व हुआ एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन वेट एंड मेजर का स्टैंडर्ड हुआ, जैसे हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना। रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटिंग का भी सिस्टम आया। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था लाइव स्टॉक के लिए, कि जो लाइव स्टॉक है जब भी उनका ब्रीडिंग सीजन होने के बाद वो क्या होता था, नंबर बढ़ जाता था, उसमें से कुछ का पेरिश हो जाएगा, तो कुछ घट जाएगा, कुछ इंक्रीज करेगा, तो उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए थी। अदरवाइज क्या होगा, कोई आदमी उसमें से जो अच्छे ब्रीड के हैं उसको निकाल लेगा और खराब ब्रीड वाले वो जस्ट नंबर को फुलफिल कर दे सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए वो अकाउंटिंग हुआ, एक सिस्टम आया वेरिफिकेशन का, मींस दैट इज द ऑडिट। और ये सबको प्रोटेक्शन के लिए एक कोर्ट का निर्माण किया जाता था, जहां पे ये सारी चीजें क्लब होती थी और एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, और ट्रेनिंग के लिए वो गुरुकुल था। तो ये सिस्टम हमारा चलने लगा। अभी जैसे जो व्यवस्था थी, जैसे लैंड हो गया, तो लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक लैंड हो गया जिसके ऊपर इरिगेशन है, और एक लैंड वो था जिसपे इरिगेशन नहीं है, विच इज डिपेंडेंट ऑन रेन। तो ये तो हो गया मतलब नेचर के हिसाब से। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, क्या करते थे कि दे आर सर्टेन कॉल्ड द फ्री लैंड और दे आर सर्टेन टैक्स लैंड। तो जो इरिगेटेड लैंड होता था इट विल बी ऑलवेज टैक्स्ड लैंड। तो उसका इरिगेटेड का फॉर्मूला यह था कि कम से कम 2 क्रॉप उसके अंदर होना चाहिए, और उसका 1/6 जो पोर्शन था एग्रीकल्चर का, दैट विल बी टैक्स एज ए एग्रीकल्चर टैक्स, दैट विल गो टू द किंग। नॉन इरिगेटेड जो था लैंड, उसका यूज होता था एक तो गाउचर, ग्रेजिंग यार्ड फॉर द ऑल द एनिमल्स, देन द टैक्स फ्री लैंड गिवन टू नोबल, चीफ, या किसी के ऊपर किंग अगर खुश हो गया किसी काम से तो वो उसको डोनेट करता था। गुरुकुल जो होता था वो टैक्स फ्री लैंड में रहता था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। देन टैक्स फ्री लैंड होता था टेम्पल को, जो साधु सन्यासी का जो हेर्मिटेज वगैरह रहता था उनका, और वानप्रस्थ लोग जो अगर जंगल में चले जाते थे तो उनके लिए भी वो टैक्स फ्री व्यवस्था था। तो ये सारे मतलब अलग अलग उसका प्रॉपर सर्वे करके ये व्यवस्था थी। अकाउंटिंग था, अकाउंटिंग में बेसिकली प्रॉपर मार्किंग होता था, खास करके लाइव स्टॉक का, कि वो मिक्स नहीं हो जाए प्राइवेट प्रॉपर्टी राजा की प्रॉपर्टी के साथ। लाइव स्टॉक ऑडिट था। इवन जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि दुर्योधन खुद गया था ऑडिट करने के लिए, और वहां पे वो गंधर्व के साथ उलझ गया, और मतलब आगे की स्टोरी हुई। तो कहने मतलब कि ऑडिट जो था वो सच्चे पावरफुल थिंग्स, कि काफी हाई प्रोफाइल लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे।
फॉरेस्ट, माइंस एंड बॉडी वाटर बॉडीज प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। किसी भी जमीन पे अगर ये तीनों चीज आ गई, जैसे यहाँ पे तो नहीं है, जैसे हमारे यहाँ जाएंगे गंगा नदी के, तो वो शिफ्ट होते रहती है। तो जैसे 10 किलोमीटर का बेल्ट है, तो 10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी गंगा नदी शिफ्ट हो जाएगी। तो जहां गंगा नदी शिफ्ट हो गई वो प्लेस गवर्नमेंट का हो जाएगा, और जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो जहां खाली होगा वो फिर जिसकी प्रॉपर्टी है पर्सनल, वो उसको हो जाएगा। तो लाइक दैट ये अगर कहीं पे लैंड है बट कल को उधर में माइंस निकल गया, तो माइंस निकल गया तो वो दैट विल बी प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, और उस बंदे को उतनी लैंड के बजाय दूसरी जगह एक लैंड का पीस उसको दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो था वो ओन्ड था स्टेट से भी, एंड उसका इंडिविजुअल प्रोफेशनल भी ओनर होते थे। जो टैक्स का सिस्टम था एग्रीकल्चर के लिए 1/6 था। डेयरी में जो बटर होता था, इन सभी दूध का वो दही बनाएंगे और दही से उसको निकालते थे बटर। तो जो बटर होगा वो किंग को जाएगा, और बाकी जो छाछ वगैरह जो हुआ वो जो एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहा है उसके पास। ये जो हम देखते हैं ना कृष्ण भगवान का, जो बोलते हैं कि माखन चोर, कि वो माखन की चोरी कर लेते थे या मटकी फोड़ते थे, तो ये बेसिकली उनका प्रोटेस्ट था अगेंस्ट दिस सिस्टम। अगर माखन होगा नहीं तो राजा को देंगे क्या? तो एक तो पहला वो घर में जब भी कलेक्ट होता था उसी टाइम पे उसको हड़प कर जाना, और जो लोग थे उनके बीच में बांट देना, बच्चों के बीच में। अगर उससे भी कोई सेव कर लिया लेकर के जा रहा है तो वो पत्थर मार करके उसको मटकी को तोड़ देते थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि जो कंस है, जो राजा है, वो जनता के ऊपर अन्याय कर रहा है। तो उसका काम है कि अगर हम टैक्स देते हैं तो हमारा प्रोटेक्शन देना, लेकिन वो अन्याय कर रहा है, तो अन्याय कर रहा है तो फिर उसको टैक्स क्यों देना? तो इस तरह से, तो जिसकी वजह से उनको मतलब अलग नाम से लोग बुलाता है। बट जैसे उनकी कविता है कि मैया मोरे मैं नहीं माखन खाई हो, फिर बाद में बोलते हैं कि मैया मोरे मैंने ही माखन खाई हो। जस्ट वर्ड को चेंज किया उन्होंने। तो बेसिकली क्या है कि जब वो बोलते हैं मैं नहीं, तो वो इंडिविजुअल की बात करते हैं, और जब वो मैंने की बात कर रहा है तो वो कलेक्टिव सभी की बात कर रहे हैं कि मतलब हमने खाया है। खैर, तो ये हो गया मतलब उसका पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होता था। लेकिन ये जो फ्री लैंड होते थे वो फ्री लैंड इनहेरिट नहीं होता था। जो टैक्स लैंड होगा वो इनहेरिट होगा। फ्री लैंड जो था, जो नोबल या चीफ को मिला है, जब तक वो उस पोजीशन पे या पोस्ट पे है तब तक उसको होगा। अगले दिन अगर कोई दूसरा आदमी बन गया तो वो उसको शिफ्ट हो जाएगा, वो बच्चे को नहीं जाएगा। ठीक है। देन बाकी जो है इकोनॉमिक्स के रूल थे। इकोनॉमिक्स के रूल बोलेंगे तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट का रूल था, जुडिशियल का रूल था, ऐसे बहुत सारे चीज उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। वेट एंड मेजर का था, न्याय व्यवस्था थी, पेनाल्टी था। पेनाल्टी को 3 फॉर्म में लिया जाता था, मनी, लेबर एंड काइंड। लेबर कहने का मतलब जैसे अभी भी सुनते हैं बामुशक्कत कारावास, तो बामुशक्कत मीन्स बेसिकली लेबर। जैसे लेबर आपको इतने दिन तक काम करना पड़ेगा, उसी का थोड़ा डिराइव्ड फॉर्म है। या आपको पास पैसे नहीं है तो आप आइटम दे सकते हो, मतलब घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, अनाज हुआ, ऐसी कुछ चीजें आप जो बेस्ड ऑन द मीडियम एक्सचेंज आप दे सकते हैं। टैक्स जो था वो 2 काइंड में था, मनी और काइंड। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ तो 1/6 है, अगर आपने चावल उगाया है तो चावल देने का है, गेहूं उगाया है तो गेहूं देने का है, बाजरी उगाया है तो बाजरी देने का है। उसमें वो चेंज करने की जरूरत नहीं है या कैश में देने की जरूरत नहीं है। कैश जो था वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसके कॉइन थे, और मीडियम एक्सचेंज था कि इतने मतलब चावल का इतना कॉइन होगा या इतना कॉपर कॉइन होगा। तो कॉपर कॉइन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू और उसका
करेंसी का वैल्यू मोर और लेस एक ही लेवल पे होता था, ताकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेंटेन हो। कम्युनिटी का ओनरशिप रहता था, और 3 टाइप के दास उस टाइम पे थे। एक दास बोलते थे जिसको बेचा और खरीदा जाता था, मतलब दैट इज द परमानेंट। कुछ होते थे सीजनल, पर्टिकुलर सीजन में आएंगे, काम करेंगे और वो चले जाएंगे, और कुछ होते थे टेम्पोररी। तो ऐसे करके 3 टाइप ऑफ वर्कर्स थे। अभी जैसे कुटुंब है, तो कुटुंब क्या बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कुटुंब को मेंटेन करना। वैसा नहीं बोल सकता कि भाई अभी कुटुंब मेरा हो गया लेकिन मैं तो अभी साधु बन जाएगा, मेरे को उससे मतलब नहीं है। तो बोलता है कि नहीं, इट इज द ड्यूटी टिल वो जो गृहस्थ आश्रम का उसका पीरियड है तब तक उसकी बाउंड ड्यूटी है कि वो करेगा। तो किसको किसको सपोर्ट करेगा? अपनी पत्नी को, बच्चे को, पेरेंट्स को, माइनर ब्रदर जो छोटे भाई है जो कि अभी मेजोरिटी को नहीं आए हैं, डिपेंडेंट सिस्टर, वो अनमैरिड भी हो सकते हैं और विडो भी हो सकते हैं। तो इन सभी को उसका ऑब्लिगेशन है कि जब तक वो गृहस्थ आश्रम में है उसको करना ही करना है। और उसको अगर ये था कि वो एक जज टाइप होते थे, उनके पास वो जा करके बोलेगा कि भाई मैं अभी इससे बाहर निकलना चाहता हूं। वो चेक करेंगे और बोलेंगे कि हाँ इसकी अभी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये एशिएटिक या साधु सन्यासी बन सकता है, तो फिर वो परमिट होता था। अदरवाइज इट वाज नॉट परमिटेड, मतलब विल एंड विश नहीं था। या किसी ने शादी कर लिया, बोले कि नहीं अभी ये मेरी वाइफ नहीं है, मतलब मुझे मतलब नहीं है। नहीं, अगर आपने शादी किया है तो यू हैव टू मेंटेन हर। उसके जो बच्चे होंगे उसको आपको मेंटेन करना आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे भाग नहीं सकते हो। अभी जो स्ट्रक्चर होता था वो कुछ इस टाइप का रहता था कि जैसा ये एक बीच में फार्मिंग कम्युनिटी था, फिर उसके आसपास डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल की बस्तियां होती थी। मतलब कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, बार्बर हो गया, दर्जी हो गया, और कॉर्नर पे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे टेंपल होता था, और वहां पे एक वाटर का सिस्टम होता था। इट कुड बी पॉन्ड या नदी के किनारे भी हो सकता है। और करीब करीब मिनिमम कॉर्नर से वो रोड से कनेक्टेड होता था। तो ये कनेक्शन जो था वो नियरेस्ट जो सिटी होता था या जो मार्केट होता था उसको वो कनेक्ट करता था। यहां पे जो चीजें थी, जो सिस्टम था कि जैसे फार्मिंग है तो कम्युनिटी है, उसमें सबके शेयर होते थे। राजा का तो 1/6 हो गया, उसके बाद जैसे मंदिर होगा, सर्टेन पोर्शन वो मंदिर को जाएगा, सर्टेन पोर्शन बार्बर को जाएगा, सर्टेन पर्सन वो ब्राह्मण को जाएगा, सर्टेन पोर्शन वो लोहार को जाएगा। तो ऐसे हर एक का उसमें एक फिक्स्ड शेयर था। और ये जो है 100 से 400 फैमिली का एक सेटलमेंट होता था। 400 से ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा होगा तो फिर वो दूसरा सेटलमेंट क्रिएट करेंगे। वो किंग की जिम्मेदारी होती थी ऐसा सेटलमेंट क्रिएट करना। तो ये ऐसा करके वो जो खेती होती थी उसमें से सभी का एक एक शेयर होता था। तो कहने मतलब कि जितने भी लोग उस गांव में रहते थे तो सभी को मालूम था कि ये खेती में मेरा भी हिस्सा है, मतलब ये सिर्फ फार्मिंग कम्युनिटी का नहीं है, मेरा भी सर्टेन पोर्शन है। इवन जो खेतों में काम करते थे तो उनको भी एक शेयर मिलता था, मतलब 5% 10% ऐसा उनका शेयर होता था। सो इट वाज ए बेसिकली जो हम कोऑपरेटिव जो बोलते हैं, तो कोऑपरेटिव नहीं था बट इट इन ए डिफरेंट वे इट इज कोऑपरेटिव ओनली, कि जहां पे सब मिल करके काम करते थे और अपना अपना शेयर वो सेग्रीगेट करते थे बेस्ड ऑन दैट। जनरली ये एक रिवर के बैंक पे होता था,
ताकि उससे कम्युनिकेशन भी होता था और पानी का सप्लाई भी मिलता था। अगर किसी की डेथ हो जाए तो नदी के किनारे ले जाकर के उसकी लास्ट जो राइट्स होता था वो वहां पे करते थे। तो ये सारी चीजें मतलब रिवर वॉज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मतलब विलेज का। ऐसे जैसे 400 विलेज के ऊपर फिर एक कमांड आता था। 400 विलेज के ऊपर एक और हायर कमांड होता है, जैसे जिसको हम सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट ऐसा बोलते हैं अभी आज के टर्म में। तो उस टाइप की चीजें उस टाइम पे थी। तो उसका एक लिमिटेड रेशियो था और उस रेशियो के हिसाब से वो क्रिएट होता था। और ये क्रिएशन करना मतलब किंग जो था उसकी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, तो यहां तक कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐड कोई करना चाहता है? तो ये जो बेसिकली इवॉल्व हुआ है पृथ्वी से लेकर के राम तक आते आते ये सारी चीजें इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। ये बेसिकली हमने सभी ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जब भगवान राम रावण को युद्ध में हरा देते हैं तो जब सीता जी आती है तो वहां पे अग्नि परीक्षा लेते हैं। और नहीं, और बहुत सारे जो लोग हैं खास करके जो फीमेल एडवोकेसी वाले हैं इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि भगवान राम ने ये बराबर किया था या नहीं किया था। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या है कि भगवान राम जब युद्ध जीत लिए और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने मैसेज दिया सीता जी को कि मतलब उसको आप हमारे पास भेज दो। तो जब सीता जी चलने लगी तो मंदोदरी वगैरह आ गई। तो सीता जी क्या थी, वो रावण के प्रिजन में थी। तो वहां पे वो ढंग से नहाती नहीं थी, वो कपड़े भी जैसे तैसे थे, पुराने थे, मतलब वो थोड़ा सा बैड शेप में थी। तो मंदोदरी बोली कह रहे तुम राम के पास जा रही हो तो ऐसे जाओगी? तो है बे बात, मेकअप वेकअप करो वगैरह सब प्रॉपरली प्रिपेयर होकर के आप जाओ। और फिर उनको एक वो पालकी में कवर करके बिठा करके लेकर के आ रहे थे। और ये जो उनकी सेना थी, बंदर भालू जो भी थे, मतलब आदमी जो भी थे, उनको एक एंजाइटी था कि वो कौन सा कैसा पर्सन है जिसके लिए हमने इतनी जान की बाजी लगा दी। क्योंकि उन्होंने सीता जी को तो देखा नहीं था, तो जिसके लिए मतलब इतना मर मिटे वो है कौन। और सीता जी आई तो वो एक पूरे कवर्ड में थी। तो भगवान राम ने बोले कि आई एम ए किंग सो आई एम लाइक ए फादर। अगर तुम रानी हो तो यू आर लाइक ए मदर ऑफ ऑल द पीपल। तो अगर आप मदर हो तो फिर मदर और सन के बीच में पर्दा नहीं होना चाहिए। तो आप पहला तो है कि वो पर्दा रिमूव कर दो। सेकेंड चीज उन्होंने वो बोला कि किंग के क्लोज में अगर कोई आना है, बराबर है, तो उसके पास्ट बैकग्राउंड कुछ भी होने दो, मतलब वो राजा की बेटी है, राजा की वाइफ है, जो कुछ भी है, दिस इज डिफरेंट थिंग। बट वो अगर किंग के क्लोज में आना है तो आपको परीक्षा से पास करना पड़ेगा। ओल्ड थिंग इज नॉट सफिशियंट टू बी क्लोजर टू ए किंग, क्योंकि आपकी बात का बहुत कुछ इंपैक्ट पड़ता है वो राज्य की व्यवस्था के ऊपर। उन्होंने लक्ष्मण को भी पनिश किया है, सीता जी को भी पनिश किया है, हनुमान को भी पनिश किया है। उनके कहने का मतलब सिस्टम यह था कि भाई आपकी स्टेटस कोई भी हो, बड़ा हो या साधारण हो, लॉ के हिसाब से सब एक है। सो वो उन्होंने राम राज्य का बेसिक जो कंसेप्ट था वो उन्होंने डाला कि राजा इज लाइक ए फादर एंड क्वीन इज लाइक ए मदर। और उसके बाद जो फादर और मदर सोचते हैं उसके हिसाब से बाकी आपकी थॉट फ्लो होनी चाहिए। इसमें एक और तो सुखस्य मूलम धर्म
धर्मस्य मूल अर्थ, अर्थस्य मूलम राजस्य, राजस्य मूलम इंद्रिय जय, सुखस्य मूलम धर्म। धर्म बोलते हैं कि जिसको इंडिविजुअल धारण करता है। धर्म का दूसरा डिफिनेशन ये बोलते हैं कि जो सत्य से सटा हुआ, यानी कि जो कि कभी चेंज नहीं होता है। लाखों साल पहले वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। तो अगर हम धर्म से जुड़े हुए हैं तो हमको आनंद आएगा। जैसे अगर बोलते हैं कि भाई त्याग करो, तो आपने अगर किसी जरूरतमंद के लिए कुछ त्याग किया है तो आपको ऑटोमेटिक आनंद आता है। उसको कहीं पे खरीदने की या बांटने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज बोलते हैं, जैसे हर आदमी का होगा कि अगर सुबह अपने वॉशरूम गए हैं और पूरी तरह से वो फ्रेश हो गए, तो कहने मतलब कि जो चीजें होनी चाहिए वो हो गई तो हमें एक आनंद आता है। 1-2 घंटे 3 घंटे तक बिल्कुल मन फ्रेश होता है, एक आनंद रहता है अंदर में। तो बोलता है कि धर्म क्या है कि जो चीज होनी चाहिए वो हो जाना धर्म है, और वो चीजें होती है तो बेसिकली आपको बहुत टाइम सुख मिलता है। धर्मस्य मूल अर्थ, धर्मस्य मूल अर्थ का मतलब क्या है कि अगर अर्थ में आपकी वीकनेस है, सफिशिएंट अर्थ नहीं है, तो आप धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हो। जैसे आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास खुद ही खाने के लिए नहीं है, तो आप क्या किसी को डोनेट करोगे? बराबर है। तो चीजों को करने के लिए आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बराबर होनी चाहिए। अर्थस्य मूल राज्य, जो स्टेट है वो क्या है? अर्थ का गाइडर है, वो उसको प्रमोट करता है, वो उसको सपोर्ट करता है। तो जो राज्य है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अर्थ का। एंड राजस्य मूल इंद्रिय जय। इंद्रिय जय क्या हो गया कि वो आदमी जिसको लालच, लोभ, ईर्ष्या नहीं है, तो वो किसके लिए काम करता है? तो वो काम करता है पब्लिक इन जनरल। तो हो सकते हैं उसके थोड़े डायरेक्शन गलत भी होंगे, तो भी इन टोटलिटी वो लोगों के लिए काम करता है। तो बोलता है कि राज्य स्ट्रांग कभी बनेगा जब उसके हेड इंद्रिय जय लोग होंगे। अगर वो नहीं है, वो करप्ट है, तो फिर प्रॉब्लम है। इसलिए आज भी जो पॉलिटिशियन होता है तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ा चार्जेस लोग क्या लगाते हैं? करप्शन का। इसने यहां पे पैसा खाया, यहां पे गड़बड़ किया, यहां पक्षपात किया, ताकि उसको प्रूव कर सके कि वो राज्य को होल्ड करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो धर्म एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल में क्या था कि जस्टिस टू ऑल, बिल्कुल काफी स्ट्रांग एंड इंडिपेंडेंट होगा, और राजा जो है एक ट्रस्टी है, जो प्रजा के लिए जो फैमिली वैल्यू है उसको संभालना है, सोशल ऑब्लिगेशन जो है वो उसको संभालना है। स्टेट जो है उसका बेसिक पर्पस क्या है? सिटीजन है। मतलब स्टेट इज ऑलवेज लुकिंग और वर्किंग फॉर द सिटीजन। और टैक्स एंड वेलफेयर, इसके बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रामायण में बोलते हैं कि जैसे सूर्य जो है वो अलग अलग जगह से पानी को खींच लेता है, तो पानी खींचता है तो क्या होता है? हमको दिखाई नहीं देता है, मालूम भी नहीं पड़ता है। एक गिलास पानी आप रख दो, कभी वो पानी निकल रहा है नहीं दिखेगा, नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन पानी वो सूर्य खींच लेता है। और फिर क्या करता है? जब ये रेनी सीजन होगा तो पानी को फिर सभी जगह पे वो फ्लो कर देता है। तो उससे क्या होता है कि लाइफ जो है वो कंटिन्यू करती है। तो बोलते हैं कि किंग को भी वैसे ही रोल करना है कि जब वो टैक्स लेता है तो जो टैक्स देने वाला है उसको फील नहीं होना चाहिए कि ये हमको इतना टैक्स देना पड़ रहा है। और वो टैक्स कलेक्ट करके फिर क्या करेगा? वो चैरिटी के रूप में रिजर्वायर बनाएगा, रोड बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा,
गुरुकुल को सपोर्ट करेगा, ऐसी चीजें करके वो वापस वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो बोलते हैं कि टैक्स एंड वेलफेयर विल गो हैंड इन हैंड। या कभी वो प्रॉब्लम आ गया, फेमिन हो गया या डिजीज स्प्रेड हो गया या कुछ नेचुरल कैलामिटी है, उस टाइम पे वो सपोर्ट करेगा पब्लिक को ताकि लाइफ प्रोटेक्टेड हो। तो राम राज्य के बारे में जो तुलसीदास का रामायण है उसमें क्या बोलते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कबहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, ना ही को अबुध न लक्षण हीना। इस 3 टाइप के प्रॉब्लम बताए गए हैं, दैहिक दैविक एंड भौतिक। दैहिक मीन्स बॉडी का प्रॉब्लम, दैविक मीन्स विच इज कमिंग फ्रॉम द गॉड लाइक डिजीज वगैरह जो है। भौतिक इज कोल्ड, ज्यादा गर्मी वगैरह इस टाइप के। राम राज्य कबहू नहीं व्यापा, राम के राज्य में ये कभी भी नहीं आया। सभी लोगों में परस्पर स्नेह का वातावरण था, सब लोग अपने धर्म में निरत थे, मतलब उसमें लगे हुए थे। कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था, और कोई बुरे लक्षण से जैसे हाथ कट गया हो, पांव कट गया हो, ऐसे भी लोग वहां पे नहीं थे। तो ये उनके बारे में मतलब ऐसा वो राज्य के बारे में बताते हैं। अभी ये भगवान राम ने ये किया कैसे, तो जब भी उन्होंने अयोध्या का राज्य तो उन्होंने एज ए युवराज या वहां के देखा था उन्होंने, फिर वो जंगल में गए। तो पहले उन्होंने वशिष्ठ जी से शिक्षा लिए थे, फिर विश्वामित्र जी से लिया, फिर अलग अलग जो गुरुकुल थे वहां पे भी हो गए, भारद्वाज ऋषि के पास गए, अगस्त ऋषि के पास गए, और भी बहुत सारे जो गुरुकुल वगैरह थे वहां पे उन्होंने गए। लास्टली उन्होंने 2 किंगडम को देखा, एक जो था वो पाली का था जो कि मिलिट्री माइट में सबसे स्ट्रोंगर था, और दूसरा रावण की लंका जिसको बोलते कि सोने की लंका थी। तो जब भी पाली और रावण मर रहा था तो उस टाइम खुद भी गए, अपने भाई को भी भेजा कि जा से इनके से कुछ सीख लो, बराबर है। तो वो एक पॉलिटिकल लेसन के लिए गए। जब वो वापस आ रहे थे तो पुष्पक विमान पे अपना उन्होंने वो सभी लोगों को बिठाया, विभीषण होने दो, सुग्रीव होने दो, हनुमान, जामवंत, और भी जो उनकी बांदरी सेना थी सबको बिठाया, और पहले लेके आए वो किष्किंधा। किष्किंधा में सभी लोगों को बोला कि भाई आप जिसको मिलना जुलना है, अपने जो फैमिली यहां पे रखे थे उससे मिल लो, और इंपॉर्टेंट लोगों को तो उन्होंने बोला कि आप चलो मेरे साथ आगे। तो जो अपने फैमिली को लेना चाहते थे उन्होंने फैमिली को लिया, और जो खुद जाना चाहते थे खुद लिए, और सबको लेकर के फिर वो गए भारद्वाज ऋषि के आश्रम पे, और वहां से उन्होंने मैसेज दिया भरत जी को। फिर भरत और राम जी का मिलन हुआ, और फिर वो राम जी का राज्य तिलक हुआ। तो राज्य तिलक होने के बाद भी इन्होंने ये जो लोग थे, विभीषण, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, इनको अपने राज्य में काफी दिनों तक रखा। तो उनकी जो बेस्ट चीजें थी उसको उन्होंने यहां पे अडॉप्ट किया। मीन्स रावण की सोने की लंका थी, उसकी कुछ गलत चीजें था, लेकिन कुछ अच्छी चीजें थी, तभी वो इतना प्रोस्पर राज्य था। तो उसकी अच्छी चीजें क्या थी, वो उन्होंने विभीषण के थ्रू यहां पे ट्रांसफर करवाया, सुग्रीव के थ्रू मिलिट्री चीजों का ट्रांसफर कराया। तो उन्होंने एक अयोध्या का एक तो ऑलरेडी उनके पास स्ट्रॉन्ग किंगडम था, उसको उन्होंने ऑगमेंट किया अपने नॉलेज के साथ, जो उन्होंने अलग अलग गुरुकुल से लिया था, और लंका का इकोनॉमिक मॉडल, किष्किंधा का मिलिट्री मॉडल, ये सबको फर्दर उन्होंने ऑगमेंट किया। 14 साल जो वो वनवास में रहे, तो जो जनरल पब्लिक था उसके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो गई थी कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या हमको करना चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने एक और चीज इंश्योर कराया थ्रू द स्टेट कि अच्छे हैबिट जो है वो हर एक सिटीजन के अंदर जानी चाहिए, एंड
सबको रिस्पेक्ट करो, इवन वो एनिमी भी है तो भी, एटलीस्ट उसकी अच्छी चीजों के लिए उसको रिस्पेक्ट दो। तो ये सब बेसिकली उनके राम राज्य के चीजों की वजह से वो एक आइडियल स्टेट उन्होंने फॉर्म किया। जो इंपॉर्टेंट अंग थे स्टेट के वो थे राजा या सम्राट, मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेना दैट इज आर्मी, कोष, ट्रेजरी, किला दैट इज द फोर्ट, देन प्रजा, सिटीजन। सिटीजन कैसा होना चाहिए? हेल्दी, डिसिप्लिन्ड एंड एजुकेटेड। तो उनकी फिलॉसफी थी कि अगर हमारा सिटीजन बढ़िया होगा तो स्टेट खुद ब खुद बढ़िया हो जाएगा। देन वाज द दूत, या यू कैन से अलायंस, मतलब ये दोनों इंटरलिंक्ड है। दूत मीन्स दूसरे कंट्री में जो जाता है और वहां पर आपके लिए सपोर्टर किंग क्रिएट करता है, वो एक इंपॉर्टेंट है। और जस्टिस फॉर द ऑल। तो ये बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर राम राज्य का उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया और आगे को प्रोसीड किए। इसमें कुछ और ऐड करना है किसी को? ठीक है, ओके। तो अगला भी श्री कृष्ण। बेसिकली राम राज्य के करीब करीब 4-5 हजार साल के बाद श्री कृष्ण हुए हैं। तो जो चीजें उन्होंने एस्टेब्लिश की थी धीरे 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 वो डिटेरिएट होती चली गई। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जैसा आप जानते हैं कि उनका जन्म प्रिजन में हुआ। तो वहां पे सिचुएशन क्या था? कंस एक राजा था जो हेवी टॉर्चर करता था अपने सिटीजन को। टैक्स वगैरह बराबर चाहिए, उनका वेलफेयर वगैरह से उससे कुछ मतलब नहीं है, बराबर है। मतलब यहां तक आप समझ लीजिए कि उनको जो भी मालूम हुआ कि ये देवकी का जो पुत्र है वो हमको कंपटीटर होने वाला है, हमको डिफीट कर सकता है, तो उसने राजा को, राजा की बेटी को, राजा के दामाद को, सबको प्रिजन में डाल दिया, बराबर है। क्या हुआ? किसी ने बताया कि नहीं उसका 8वां होगा, तो हर एक बच्चे को जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको मार देता था। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उस टाइम पे जितने भी बच्चे उस रेंज में जन्म लिए थे थोड़ा आगे पीछे, तो जो भी अगर मेल चाइल्ड था उसको उसने किल कर दिया। तो जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो इसलिए बोलते हैं कि उनके ज्यादातर जो मेल जोल था वो गोपिकों के साथ था, मतलब फीमेल। क्यों? क्योंकि जो मेल चाइल्ड था उसको मार दिया था, और मेल चाइल्ड उसके टाइम के लिए मतलब बहुत स्केयर आइटम था। तो उनके जो ग्वाले जो दोस्त थे वो एज में बड़े थे, श्री कृष्ण के एज के नहीं थे, क्योंकि सबको उसने मार दिया था। उनके एज के थे, वो फीमेल थे। तो मतलब इस टाइप का वो कंस का साम्राज्य था, और कंस का ही नहीं था, ये पूरी उनकी एक सिस्टम बना हुआ था। जरासंध था, शिशुपाल थे, ऐसा उनका पूरा एक सिस्टम था। तो उनके अगेंस्ट में श्री कृष्ण चालू किए, बराबर है। अभी जैसे सोशल सिस्टम में आप सोचेंगे, सुदामा श्री कृष्ण के रूम में थे, मतलब एक ही रूम में दोनों रहते थे। तो सर्टेनली जब गुरु ने उनको किया होगा तो सुदामा में भी बहुत सारी टैलेंट होगी, बराबर है। लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो अपने खुद भी उनको खाने के लिए नहीं था, बच्चे को भी नहीं खिला सकते थे। मतलब सच्चे एजुकेटेड पर्सन की ये इकोनॉमिक कंडीशन था। जिस गांव में रहते थे उनको कोई भिक्षा देने के लिए भी तैयार नहीं था, मतलब किसी के पास नहीं थे कुछ, ऐसा पोवर्टी में मतलब मास था। द्रोण जो थे उनका इशू क्या था कि अश्वत्थामा को एक गिलास दूध नहीं मिला था। एक गिलास दूध उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि अरे दूध ऐसा लगता है, तो उसको मालूम नहीं था दूध क्या होता है। तो अपनी मदर को बोला कि हमको दूध दो,
उसकी मदर बोली कि ठीक है, तो उन्हें चावल का पाउडर किया और थोड़ा शक्कर डाल करके दे दिया। तो अपने फ्रेंड के साथ पास आए, वो बोले कि ना मैंने दूध पिया, बहुत टेस्टी होता है। उनके फ्रेंड में से किसी ने देख लिया तो बोला, अरे तुमने किधर दूध पिया, वो तो चावल का पाउडर है शक्कर डाला हुआ। तो ये वापस कंप्लेन गया द्रोणाचार्य के पास। तो वो फिर जाते हैं अपने फ्रेंड के पास, द्रुपद के पास। तो द्रुपद के पास उनकी डिमांड क्या थी, एक गाय, कि एक गाय हमको दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकूं। द्रुपद ने वो भी डिनाई कर दिया कि नहीं, और बोला कि तुम दोस्ती वोस्ती का बात मत करो, एक किंग और पुअर के बीच में दोस्ती नहीं होता है। तो कहने मतलब क्या है कि जो कॉमन सिटीजन था उसकी ये पैथेटिक कंडीशन थी। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण हुए तो पहला उन्होंने क्या चालू किया, गणतंत्र की बात की। मीन्स अपने फादर इन लॉ को उन्होंने किंग बनाया। फिर बहुत से आक्रमण हुए, उन्होंने द्वारिका में स्टैब्लिश किया, द्वारिका काफी अच्छा स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो हेड है बहुत सारे, वो एज ए इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, तो वो इनकी भी बात नहीं सुनते हैं। जैसे आज है बहुत सारी विपक्षी पार्टी है, सबका एक एक हेड होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी चीजें उसके लिए क्या फेवरेबल है वो चीजों के ऊपर करते हैं। कंट्री को क्या चाहिए, स्टेट को क्या चाहिए, उससे उनकी बॉडरेशन कम हो जाती है। तो लेटर पार्ट उन्होंने श्री कृष्ण रियलाइज किया कि गणतंत्र जो है वो बराबर सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने उसको फोकस करना बंद कर दिया। और उन्होंने क्या स्टेप देखा कि जो युधिष्ठिर है, भीम है, उनको सम्राट बनाओ और किंग को सम्राट के थ्रू कंट्रोल करो, और सम्राट के अंदर क्या क्या सिस्टम होना चाहिए वो उन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और इंडिविजुअल के लिए उन्होंने दो कंसेप्ट दिए, भक्ति योग का और कर्म योग। कर्म योग मीन्स बेसिकली आपको कुछ छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, यू रिमेन इन द सिस्टम और अपना काम यू डू इट विद द कंप्लीट ऑनेस्टी। और भक्ति जो है मतलब भगवान की पूजा करो जहां भी आप हो, दैट इज सफिशिएंट टू गेट यू द मोक्ष। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे एज वेल एज सोसाइटी लेवल पे इन्होंने एक नई कंसेप्ट को लेकर के आए। इसमें एक प्रसंग है कि जब भी वो महाभारत का युद्ध जो था वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया था, मतलब पांडव जो थे अपनी सेना लेकर के एक जगह आ गए थे, कौरव भी अपनी सब सेना एकत्र कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने बोला कि लास्ट चांस पीस को देते हैं। तो वो दूत बन करके इसके दरबार में आए कौरव के, और उन्होंने लास्ट एफर्ट्स लिया था उन दोनों के बीच में मेल कराने का। उसमें वो फेल हो गए। तो फेल होने के बाद कर्ण उनके पास आए और बोला कि हमारे जो फ्रेंड था जो कुछ भी किया उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं। तो मतलब वो जब जा रिटर्न हो रहे थे तो रथ पे कर्ण और श्री कृष्ण काफी दूर तक साथ साथ गए, और उस टाइम पे जो उसका सारथी था वो चला गया, कर्ण रथ को चला रहे थे। तो उस टाइम श्री कृष्ण ने उनको बोला कि कर्ण तू जो है वो राधेय नहीं है, राधेय उनकी जो वो समझते थे कि उनकी मदर है, जिससे मतलब मदर से आया नाम राधेय। तो तुम राधेय नहीं है, तुम कौंतेय है, कुंती का बेटा है, और पहला बेटा तुम ही है। तो तुम जो है पांडव की तरफ आ जाओ। तो पांडव की तरफ जैसे आओगे तो तुमको ये युधिष्ठिर राजा बना देंगे। तो आज जो अर्जुन जो तुम्हारे साथ मतलब झगड़ा करने के मूड में है वो तुम्हारे पीछे चंवर हिलाएगा, वो लेके तुम्हारा सर्वेंट काम करेगा। और तुम अगर उधर से इधर आ जाओगे तो फिर दुर्योधन को हिम्मत नहीं होगी कि वो युद्ध कर सके। तो एक लास्ट ऑफर उन्होंने कर्ण को दिया। तो कर्ण उनको क्या बोलते हैं कि देखो ये टाइम अब नहीं है कि मैं पाला चेंज करूं,
दूसरी चीज उसने उन्होंने बोला कि आप पांडव को यह मत बताना कि मैं कौंतेय है, क्योंकि अगर आप बताओगे कि मैं कौंतेय है तो वो राज्य मुझे देंगे और मैं ऑबलाइज है दुर्योधन का, तो वो राज्य मैं दुर्योधन को दे देगा। लेकिन एज ए सम्राट युधिष्ठिर जो है इज द बेटर चॉइस, क्योंकि उसके पास सत्य है। ठीक है, तो क्या हो गया कि मॉडल ऑफ युधिष्ठिर सुपीरियर टू दुर्योधन, आई विश युधिष्ठिर एज ए एम्परर। और उन्होंने बोला कि 5 पांडव जो है उसको मैं वचन देता हूं कि वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। 4 को तो मैं मारेगा नहीं, एक अर्जुन है, अगर वो मारा गया मेरे से तो मैं पांडव के साइड में आ जाएगा, और अगर उसने मुझे मार दिया तो 5 पांडव सेफ है। और उसने एक अपने ड्रीम का चर्चा किया जिसके अंदर वो उसने बताया कि ये युद्ध में क्या होने वाला है, और एग्जैक्टली उसने वो सारी चीजें बता दी कि कौन कौन बचने वाला है, कौन कौन मारा जाएगा, किसके हाथों मारा जाएगा, वो सारी चीजें उसने डिस्क्राइब कर दी। और बोला कि श्री कृष्ण आपको ये मालूम है, लेकिन अभी आप मुझे ऐसी चीजों के लिए कंपेल मत करो, अभी मैं युद्ध भूमि में मर जाना बेहतर समझता है देन बिकमिंग ए किंग, और वो चीजें मतलब मैं करूं। तो ये एक मतलब इंडिकेट करता है कि श्री कृष्ण का थॉट प्रोसेस क्या था, और बाकी के जो उनके एनिमी थे वो उनके बारे में क्या सोचते थे। उनका मॉडल क्या था कि युधिष्ठिर वो धर्म के पुत्र थे, मतलब ही वॉज द धर्मराज। उनका जो युवराज था वो भीम थे। भीम इज स्ट्रॉन्ग इन मसल पावर। उनके 3 अपने घर में सहयोगी थे। तो जो अर्जुन थे वो मिलिट्री बाइट, बहुत बड़ा धनुष आर्चरी का वो विद्वान थे, बहुत पावरफुल थे। दूसरा जो सहदेव, सहदेव जो थे वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। तो और नकुल जो थे वो काफी हैंडसम थे, तो उनको मतलब काम का सिंबलाइज किया गया है। बोलते थे कि उनका मतलब एज पता नहीं चलता उनके दिखने से। कुंती भी जब बहुत बात करती है ना नकुल के बारे में, तो बोलते हैं कि मैं उसको पलक झपकाने में जितना टाइम जाता ना उतने टाइम के लिए भी अलग नहीं रखना चाहती हूं। तो मतलब ही वॉज ए वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी, तो वो काम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलते हैं कि वो धर्म, अर्थ, काम एंड मिलिट्री, ये चारों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। तो जो स्टेट की जो सिस्टम है वो बैलेंस में रहेगा। उसके सपोर्टर कौन है? श्री कृष्णा, गाइडिंग प्रिंसिपल। तो वो गाइड कर रहे हैं श्री कृष्णा, एंड धर्म में उनके कुल गुरु थे। तो बोलते हैं कि ये दोनों उनके सपोर्टर हैं। और जो सॉफ्ट पावर कौन है? द्रौपदी है। तो द्रौपदी का संबंध जो है वो 5 पांडव से है, एंड वो श्री कृष्ण की भी दोस्त है। तो जो सॉफ्ट पावर है ये सभी फोर्स को कंबाइन करता है, बाइंडिंग करता है। तो वही उसका कर्ण का कहना था कि ये जो कॉम्बिनेशन है फॉर बिकमिंग ए सम्राट एंड रूलिंग एंड फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, दिस इज द बेस्ट मॉडल। और श्री कृष्ण का भी वही था कि इसी को उन्होंने लेटर पार्ट ऑफ लाइफ इसी को उन्होंने सपोर्ट किया है। वो द्वारिका में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको उन्होंने छोड़ दिया। इवन युद्ध के बाद वो भीष्म पितामह के पास जाते, पूरा एक शांति पर्व करके एक सेक्शन है जहां पे वो राजा को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अर्थ की जो बहुत सारी फॉर्मूला है वो उसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो वो बेसिकली एक वेल एस्टेब्लिश्ड किंगडम उन्होंने एस्टेब्लिश किया और वो चीजें आगे बढ़ी है। नेक्स्ट इज द कौटिल्य। कौटिल्य की थोड़ी चीजें तो अपनी मैंने ऑलरेडी आपको बताई। तो इसमें जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त क्या है?
कि वो एक दास के पुत्र थे। ठीक है, तो दास के पुत्र को चाणक्य ने पोटेंशियल देखा कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है। उस बेसिस पे उन्होंने उसको पिक किया, उसको ट्रेंड किया और भारत का सम्राट बनाया। और जो अभी जो हमारा ये जो है पार्लियामेंट, उसमें एक भारत का मैप लगा हुआ है, तो वो मैप मौर्य किंगडम का है। तो अभी का जो बलूचिस्तान वगैरह जो है, बहुत सा पोर्शन है अफगानिस्तान का, वो सब भारत का हिस्सा था। भारत का हिस्सा हम बोलेंगे तो इवन वियतनाम वगैरह जो है वहां तक जाता था। बर्मा, वियतनाम, ये सब इसके हिस्सा थे। मतलब दैट इज कॉल्ड द भारतवर्ष। तो बेसिकली एक बिग स्टेट सपोर्टेड बाय गुरुकुल, मीन्स नालंदा, तक्षशिला, काशी, पाटलिपुत्र खुद एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो उसके सपोर्ट से वो एक किंगडम एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि वो पूरी जगह पे प्रॉपर रूल करते थे और एस्टेब्लिश करते थे। तो बेसिकली क्या है कि जो अर्थ है उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत आवश्यक है। तो पहला क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। वो कैसे इंक्रीज होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ फूड या क्रॉप, ज्यादा से ज्यादा एरिया को इरिगेशन मिलाना, ठीक है, रिजर्वायर बनाना, लेक क्रिएट करना। लेक एक तो नेचुरल फ्लो से होता है, एक है कि कहीं से वाटर लेकर के आना चैनल करके। लाइक एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट क्या है? जैसे जो तमाशा वाले होते हैं या रामायण करते हैं, ऐसा रामलीला, ऐसा बहुत सारे जो करते हैं, तो उनको सर्टेन पीरियड, जो खेती का पीक पीरियड होता था, वो अलाउड नहीं होता था गांव में जाने के लिए। सर्टेन सीजन जब वहां पे वो लूज पीरियड होगा, मैरिज वगैरह का जो सीजन होगा वो सब जो रहता है, समर सीजन वगैरह, तो उस टाइम पे वो परमिटेड होते थे जाने के लिए। तो ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन होता था। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज टोटली प्रोटेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय किंग। जो स्टेट के कुछ इंटरप्राइजेज होते थे, जैसे माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो स्टेट उसमें इन्वॉल्व होता था, उसको डेवलप करने में अपने अंडर चलाता था या कुछ प्रोफेशनल को भी देता था। तो ये एक कंबाइंड फॉर्मेट उसका ये था। जो ट्रेड पॉलिसीज थे पहले से चले आ रहे हैं, उसी को बोलते थे कि कंटिन्यू करना चाहिए। नए पॉलिसीज हर रोज हर बार चेंज नहीं करना है, उसको कंटिन्यू करने का। और ये ट्रेड पॉलिसी कहां से आया? जो अभी तक हमने डिस्कस किया, मनु, पृथु, राम, कृष्ण, तो सभी के जो इनहेरिट किया हुआ सिस्टम था, उसको उसमें से बेस्ट निकाल करके ये इन्होंने उसको ये किया है। किंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? एलिमिनेटिंग द थेफ्ट, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको डिसिप्लिन में रखना। अगर वो लूज हुआ तो वो करप्शन चालू कर देगा, प्रॉब्लम चालू कर देगा, क्योंकि उसको पावर मिल जाता है। ठीक है, कमोडिटी एंड प्रोडक्ट शैल नॉट बी सोल्ड इन द प्लेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चर। ये स्पेशली किसका था? ये चाणक्य था। तो क्या है कि इट विल बी ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस को कंट्रोल करता है किंग। तो वहां पे क्या है कि उसकी कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेज मिलाकर के उसकी प्राइस फिक्स होती थी। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो उस प्राइस के ऊपर होगा, और अगर उसको कोई नहीं मिला परचेज करने वाला तो किंग उसका बायर होता था। जैसे आज जो बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उस टाइम पे वो प्राइस फिक्स करके रखेगा। बिक गया, बिका, नहीं बिका तो
किंग विल परचेज इट, और वो या तो अपने सिस्टम में वो कंज्यूम करेगा या स्टोर करेगा, फिर जैसा जरूरत होगा रेगुलेशन के हिसाब से वो फिर रिलीज कर सकता है। तो उसका क्या था, ट्रेड को प्रमोट करना किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, टाउन मार्केट क्रिएट करना, उसको बढ़ाना, फेयर एंड पिलग्रिम इसको प्रमोट करना, उसको सपोर्ट करना, पोर्ट इसको मेंटेन करना, सपोर्ट करना, वाटर चैनल एंड रूट रोड ट्रांसपोर्टेशन उसको मेंटेन करना, एंड लैंड रूट रोड उसको मेंटेन करना या इंक्रीज करना। तो ये सब स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। कुछ जगह पे जहां स्टेट कमजोर होता था तो सोसाइटी वो कलेक्शन करता था लोगों से और फिर उसको बनाता था, दिस इज कॉल्ड चंदा। तो उसमें वो कंसेप्ट ये होता था कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उससे ज्यादा पैसे लेंगे, जिसके पास कम है उससे कम लेंगे, सब मिला के, और यूज सबको बराबर राइट मिलता था यूज करने के लिए। तो ये कंसेप्ट पे बेसिकली ये सिस्टम चलता था। तो जो कैलेमिटी थे वो दो तरह के थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल क्या था, मिस एप्रोप्रिएशन बाई चीफ, जो डिपार्टमेंटल हेड है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसने कितना कलेक्ट किया और कितना जमा किया मालूम नहीं, तो बोलते कि मतलब वो इंटरनल कैलेमिटीज है। रिमिशन ऑफ टैक्स, कितना उसने गवर्नमेंट को दिया। कलेक्शन अलग अलग जगह पे है, जहां पे होना चाहिए लोग नहीं पहुंचे, तो वहां पे वो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अकाउंटिंग में गलत एंट्री हो सकती है, तो फॉल्स अकाउंटिंग है वो भी हो सकता है। एक्सटर्नल क्या है कि एनिमी अटैक करके सर्टेन पोर्शन उसने लूट लिया या कैप्चर कर लिया, या रास्ते में जा रहा है, ट्राइब्स हो गया या रॉबर है, वो आकर के लूटपाट कर लिया। तो इस टाइप की चीजें थी जो कि एक्सचेकर को लॉस करती है, तो इसके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। तो कैलेमिटी बाई मेन क्या है, हाईवे रॉबरी, जंगल ट्राइब्स, आर्मी, एनिमी का आर्मी और अपना ओन आर्मी। ओन आर्मी भी अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। जो किंग के क्लोज आदमी है, जैसे मिस्ट्रेस हो गया या कोई फेवरेट वाइफ है या प्रिंस हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम लोगों को लूटपाट कर सकते हैं, अनवांटेड चीज डिमांड कर सकते हैं। लोगों के अंदर ये हो गया, विद्रोह हो गया, तो मैन मेड कैलेमिटी किया होता है। ये इवन रॉयल फैमिली में हो गया, जो किंग है 5 लोग बोलते हैं कि नहीं मैं इस राजा को नहीं मानता हूं, जैसे भी रिसेंटली हुआ इसमें ठाकरे जी के पार्टी में, धनुष्बान में, वो उधर रह गए और बाकी का ग्रुप इधर से निकल गया। तो ऐसे वो किंगडम में भी हो सकता है। किंग एंड ऑथोरिटी में लैक्स, वो ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना आराम करने में और एंजॉय करने में लाइफ में उसको मशगूल है। तो क्या हुआ कि बाकी के लोग फ्री हो जाते हैं, फिर वो उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं। जो उसके नजदीक के लोग हैं वो उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं हमेशा, तो जो जनरल पब्लिक है वो उसके पास तक उनका अप्रोच ही नहीं होता। तो इवन राजा चाहता भी है कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन उसको मालूम ही नहीं होने देते हैं। तो ये यार मैन मेड थिंग्स। एंड डिवाइन क्या है, जैसे फायर हो गया, फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, एपिडेमिक है, रैट है, बर्ड है, इस टाइप की चीज हो गई, वाइल्ड एनिमल है, स्नेक है, और वो तांत्रिक वगैरह जो बोलते हैं, वो भूत प्रेत वो जो करते हैं झाड़ फूक वगैरह, ये सब लोग तो बोलते हैं कि इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन लेना है किंग को। जैसे फ्लड है तो फ्लड अगर आएगा तो क्या हमको चाहिए होगा, तो वो चीजें आप पहले से बना के रखो। अगर फायर हो गया तो फायर के अगेंस्ट हमको क्या प्रोटेक्शन रखना है। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि वो कैलिफोर्निया में उधर फायर हो गया,
और काफी दिन तक वो फायर रहा। तो उसका एक रीजन क्या था कि जितने भी जो रिजर्वायर थे, वाटर बॉडी थे, वो खाली था। तो उसका मतलब कि वो फायर के अगेंस्ट उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं लिया और उसकी वजह से वो फायर स्प्रेड होते गया। तो किंगडम में भी इसके अगेंस्ट प्रॉपर प्रोटेक्शन रखना है। तो बोलते हैं कि सारी जितनी भी चीज हैं इसके अगेंस्ट दे आर सर्टेन सेफ्टी मेजर जो कि किंग को अपने को करना चाहिए विदाउट डिमांडिंग फ्रॉम द पब्लिक साइड। अभी इनकम जो है, जो हम बोलते हैं रेवेन्यू, उसका क्लासिफिकेशन है। तो जो इनकम आता है उसको अलग अलग कैटेगरी में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसको डालने का है। तो क्या है कि क्राउन मतलब किंग का जो इनकम है वो क्या है, वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग से हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री से हो सकता है, डेयरी से हो सकता है। दीज आर द क्राउन इंटरप्राइजेज। फिर टैक्सेज है, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स है, ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स है। रोड के ऊपर टोल टैक्स है। सर्विस चार्ज है, किंग बहुत सी सर्विस देता है, जैसे वो मार्केट है तो मार्केट को रेगुलेट करता है तो वहां पे वो टैक्स लेता है। माइंस है तो माइंस के ऊपर अगर लोगों को परमिट करेगा तो उसके ऊपर वो रॉयल्टी लेता है, या उसको रेगुलेट करके वो डायरेक्टली भी उसको यूज कर सकता है। फॉरेस्ट के अलग अलग प्रोड्यूस हैं, जैसे उधर में डाला हुआ है उसको बोलते हैं सारा, फलगो एंड कुपिया। सारा हो गया मतलब सैंडल, इसेंस वाले जो हो गए, वुड वगैरह हो गए जिसकी रेट हायर साइड है। फिर हो गए फलगो मीन्स स्किन, सिल्क, कॉटन, वुड, इस टाइप के सेमी मतलब प्रीसियस। और कुपिया हो गया जो बहुत लो वैल्यू का है, जैसे बंबू हो गया, टिम्बर हो गया, वो दवा वगैरह के जो हो गए। तो ऐसा मतलब फॉरेस्ट की चीज का वो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो जब अकाउंटिंग में एंट्री होगी तो वो इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से होगा। जैसे अभी हम जो HSN कोड बोलते हैं तो उस टाइम का इस टाइप का वो क्लासिफिकेशन था। फिर रत्न हो गया तो वेरी हाई प्रेशियस मेटल जो हो गए, पर्ल, डायमंड वगैरह, वो उसमें आते थे, रत्न में आते थे। तो ऐसा करके उसका जो इनकम की जो एंट्री होगी तो अलग अलग क्लासिफिकेशन में एंट्री आएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कुछ रूल्स थे, जैसे लेबर वर्क है तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ लेबर उसके अलग अलग चार्जेज होते थे। तो कितना आपको पे करना है लेबर के लिए, कितने घंटे के काम के लिए, वो उसमें फिक्स होता था। इनपुट टू आउटपुट रेशियो, जैसे इतना अगर क्लॉथ है तो कितना स्टिच्ड क्लॉथ होगा, इतना अगर यार्न दिया तो कितना उससे क्लॉथ निकलेगा। तो सिल्क है तो कितना होगा, कॉटन होता है तो कितना होगा, उलन है तो कितना होगा। ये सब का एक फिक्स रेशियो था जो कि हम आज भी कॉस्टिंग में इनपुट आउटपुट रेशियो बोलते हैं। तो उस टाइम पे उसको प्रॉपर वो डिफाइन किया हुआ था, इंक्लूडिंग मेटलर्जी की। जैसे सोना है तो कितना सोना है तो कितना उसका वो फाइनल ऑर्नामेंट में मतलब कितना तक जाएगा और कितना उसको अलाउ करेंगे लॉसेस। वेट एंड मेजर मतलब छोटा से लेकर के बड़े तक उसका एक, जैसे गोल्ड वगैरह काफी प्रीसियस है तो उसका बहुत छोटा मेजरमेंट था, और अनाज वगैरह हो गया वो बड़े बड़े मतलब उसके मेजरमेंट थे। इसमें टॉलरेंस का रेशियो कितना है, जो लॉस था ना तो उसको एक टॉलरेंस लिमिट दिया हुआ था कि इतना के अंदर में ही होना चाहिए। मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो अभी आज हम बोलते हैं तो वो बेसिकली वो टॉलरेंस वहां पे वो डिफाइन करते थे। इसके अलावा वहां पे टाइम भी फिक्स था कि इस टाइप का काम करना है तो कितना टाइम लगना चाहिए। ओनली जो परमिशन था स्पेशल वर्क के लिए था कि जो स्पेशल टाइप का वर्क है जहां पे मतलब एस्टिमेट नहीं, स्टैंडर्ड एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कि ये कैसा होगा, तो वहां पे टाइम दोनों के बीच में डिसाइड होगा।
अगर नहीं डिसाइडेड है तो जो स्टेट का जो रूल है उसके हिसाब से उसको डिलीवरी देना है, क्योंकि टाइम कंसीडर्ड एज ए मनी। कुछ प्रोफेशन जो थे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर ये नहीं कि वो आया तो कुछ भी हमने दवा दे दिया, ही वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसकी अकाउंटेबिलिटी थी। जो इंटरट्रेनर है तो उनको अलाउड था कि क्या क्या चीजें वो मजाक कर सकता है और क्या क्या चीजों के ऊपर वो मजाक नहीं कर सकता है। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। वो जो ऐसा घुमक्कर टाइप का जो दवा बेचने वाले होते हैं, आज भी आप देखेंगे जहां तक कैसा लगा के रखता है, खानदानी दवा खाना वगैरह, तो उस टाइप के भी लोग जो थे उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन था। बेगर्स वगैरह जो होते थे इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन था, क्योंकि वो क्या होता है कि जो एनिमी है वो इनके थ्रू रूमर भी फैलाते हैं, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए ये सब लोगों के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन था। क्या कर सकता, किधर उसकी अकाउंटिंग होगी, किधर उसका एंट्री होगा, वो सब था। फ्रॉड क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, तो वो है फ्रॉड मतलब लेट डाउन था कि पेमेंट पे करेगा, सब्स्टिट्यूशन है, बोलेगा एक आइटम और दे देगा दूसरा आइटम, इंटरचेंजिंग हो जाएगा। पहले कुछ और के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन फाइनली कुछ मिक्स करके डिलीवर कर दिया। सब्स्टिट्यूशन इन एम्परेटली सॉलिड ऑब्जेक्ट, एम्बेडिंग, नॉकिंग ऑफ, कटिंग आउट, स्क्रैचिंग आउट, रबिंग आउट, इस तरह के जो फ्रॉड के तरीके थे। और जब ऑडिट या डिटेक्शन होता था तो इसके हिसाब से वो चेक करते थे कि क्या मतलब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बजटिंग। जब भी हम बजटिंग करते हैं तो उस टाइम पे बजटिंग था। तो बजटिंग क्या था कि जो हेड था वो एस्टिमेट करेगा, अभी से जो हम पहले वाले स्लाइड में था कि क्या क्या हेड में हमारा इनकम होगा, तो वो हेड वाइज एंड प्लेस वाइज, जैसे अलग अलग विलेज है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक के हिसाब से अलग अलग हेड में और अलग अलग प्लेस में कितना कितना रेवेन्यू आने वाला है। तो पहला वो प्लेस वाइज एंड हेड वाइज टोटल करेगा और फिर उसकी ग्रांड टोटल लेगा जो कि उसका रेवेन्यू बजट होगा। ओके। और इसमें जो बजटिंग में फाइन, पेनाल्टी, ये सब बजट में नहीं कंसीडर होते थे। क्यों? क्योंकि ये डिटरेंस है टू डू रॉन्ग। तो इसको हम बजट नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते कि भाई इतना पेनाल्टी कलेक्ट करना है। ठीक है। फिर जब हम उसको रिकॉर्ड करते थे तो क्या करते थे कि ट्रेजरी में जो आइटम आया है वो करंट ईयर का कितना है और प्रीवियस ईयर का कितना है। रिसिप्ट हुआ ये साल में बट वो पर्टेन करता है पहले के साल में, तो उसके वो अलग कर देंगे। फिर उसमें से जो एक्सपेंसेज है, जैसे एक्सपेंसेज जो राजा के ऊपर हुआ या स्टेट के ऊपर जो हुआ, स्टैंडर्ड रेशियो है उसके हिसाब से जो एक्सपेंसेज है, एग्जेम्पशन ग्रांट हुआ है इधर डिक्री से या किंग की तरफ से, तो वो लेस कर देंगे। कुछ चीजें पेमेंट पोस्टपोन्ड हुआ है उसको लेस कर देंगे। तो ऐसा करके ये अमाउंट लेस कर देते थे और फिर ये जो आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू है उसको उसमें ऐड कर देते थे। जैसे हो गया वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन, अनपेड फाइन एंड पेनाल्टी, ड्यूज नॉट एट रिकवर्ड, ड्यूज डेफिनेटली withheld, advances to be repaid by officials and outstanding of little or no value। तो ये सारे ऐड एंड लेस करके रिसिप्ट साइड का टोटल बजट प्रिपेयर होता था। क्लियर है? अभी जो हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा और इसमें
फर्क है। और बेसिकली ये ज्यादा फोकस किया हुआ है मतलब राज्य सत्ता के लिए, बट वट एवर एप्लीकेबल टू बिजनेस वो बिजनेस को भी जाता था, सेम सिस्टम था। फिर एक बार जब बजट हो गया तो उसको बजट वर्सेज एक्चुअल कंपेयर करते थे। तो इनकम स्टेट में क्या लेते थे? करंट इनकम, ड्यू एंड पेड इन सेम ईयर, ट्रांसफर्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग ऑफ अर्लियर ईयर, एंड इनकम अर्नड बाय वन डिपार्टमेंट ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, जो इंटरनल ट्रांसफर है वो इसमें लेते थे। और मिसलेनियस रेवेन्यू हो गया। तो रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड ड्यू एक हेड था। रिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंडिचर, ये क्या है कि जैसे बजट किया गया कुछ अमाउंट, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस उससे कम हुआ, या हमारा जो स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, लॉस जो है मान लीजिए 5% है, बट एक्चुअल लॉस हुआ 4%, तो 1% जो बचा दैट विल बी द मिसलेनियस रेवेन्यू। ओके, इनकम ड्यू टू प्रॉफिट और सेल, प्राइस राइज और कंपटीशन। जैसे हमने क्या बोला कि जो किंग जो था वो किंग अगर नहीं बिका सामान तो उसको वो खरीद लेता था, और कल को प्राइस राइज हो गया तो वो डिस्पोज करेगा, तो उतनी जो प्रॉफिट हो गई दैट विल बी द मिसलेनियस इनकम। या कुछ कंपटीशन हो गया तो उसकी वजह से जो उसको हायर प्राइस मिला तो वो भी मिसलेनियस इनकम होगा। तो दीज आर द कंसीडर्ड एज ए मिसलेनियस इनकम। एक्सपेंडिचर साइड में था बजटेड डे टू डे एक्सपेंडिचर, मतलब रिकरिंग एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम बोलते हैं। अनबजटेड डे टू डे एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिसको बजट में नहीं लिया है बट वो डे टू डे में खर्च हो रहा है। फोर्सिंग पीरियोडिक एक्सपेंडिचर, फोर्टनाइटली 15 दिन में, मंथली एंड एनुअल। तो ऐसा पीरियोडिक एक्सपेंडिचर का था, वो बजट किया हुआ है और कितना हो रहा है। और जिसको अभी हम रेवेन्यू बोलते हैं, मतलब इनकम बोलते हैं, उस टाइम पे वो प्रॉफिट अभी जो बोलते हैं वो उस टाइम पे रेवेन्यू बोलते थे। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द रेवेन्यू। और यह रेवेन्यू जो था जहां पे मिसलेनियस में आता है वो मिसलेनियस को ट्रांसफर होकर के फिर वो इनकम में चला जाता था। ओके, अभी जो अकाउंट का जो हमारा फॉर्म्स था ये हमने ऐसा लिखा है, रो वाइज लिखा है, बट बेसिकली ये कॉलम में होता था। तो कॉलम में इसके 10 कॉलम थे और एक्सपेंडिचर के भी 13 कॉलम होते थे। तो जो उनकी एंट्री है, प्लेस किस जगह का है वो रिलेटेड, वो हो गया पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट, हेड ऑफ अकाउंट, करंट ईयर या आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, उसको वहां पे डिफाइन करना पड़ता था। कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ है, क्योंकि अभी पहले हमने बताया कि यहां पे मनी में भी ट्रांसफर होता था और काइंड में भी होता था, तो इसलिए यहां पे वो क्वांटिटी मेंशन किया हुआ है। किसने दिया है उसका नाम आएगा, किसके ऑर्डर से दिया है वो आएगा, किसने रिसीव किया है और किसने रिकॉर्ड किया है। तो ये पर्सनल जो इन्वॉल्व थे उनकी भी रिकॉर्डिंग होती थी अलॉन्ग विद द ट्रांजैक्शन। जो भी हम एसएपी में जो करते हैं तो काफी कुछ चीजें इनसे फैक्ट एक आध स्टेज थोड़ा ज्यादा ही रिकॉर्डिंग था उस टाइम पे। एक्सपेंडिचर साइड में क्या था, प्लेस, पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, डेट एंड टाइम ऑफ पेमेंट, हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, काउंटर वैल्यू रिसीव्ड, ओकेजन किस टाइम पे हुआ है, व्हाट वाज पेड, काइंड है, कैश है, गोल्ड है, वॉट एवर इट इज, लेबर है, जो भी है, कितना अमाउंट पे किया गया है वो, व्हाट
फॉर व्हाट यूज, पर्पस। तो पर्पस भी यहाँ पे डिफाइन होता था, वो टैक्स है क्या है, जो कुछ भी है उसका वो आएगा। ऑथोरिटी ऑर्डरिंग द पेमेंट, किस अथॉरिटी से आ रहा है, स्टोर से अगर विथड्रॉ हुआ है या ट्रेजरी से बेसिकली विथड्रॉ हुआ है तो वो डिटेल आएगा किसने दिया है और किसने रिसीव किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कॉलमनर फैशन में रजिस्टर में एंट्री होती थी, और इस एंट्री को ओवर राइटिंग परमिटेड नहीं था। एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया, और उसके बाद फिर उसका ऑडिट होता था। फिर इसका जो बैलेंस हुआ डिफरेंट अकाउंट का, तो वो एक एंट्री अलग जाती थी। तो जो बैलेंस ऑफ अकाउंट है उसको लिखते थे प्लेस, पीरियड ऑफ अकाउंटिंग, हेड ऑफ अकाउंट, अकाउंट हेड हो गया, ड्यूज लेफ्ट आउटस्टैंडिंग, डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड जो भी होगा, फॉर्म इन विच बैलेंस रिसीव्ड इन ट्रेजरी। तो जो बैलेंस है उसका फॉर्मेट क्या है, मतलब काइंड में है, मनी में है, प्रेशियस स्टोन है, वुड हो सकता है, मतलब वेरियस फॉर्म था, कंबल, बकरिया, भेड़, ये सब भी मतलब पार्ट होता था उसका। तो वो फॉर्म यूज करेगा, उसकी क्वालिटी क्या है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था एंट्री का। ये नहीं कि मतलब सुपीरियर क्वालिटी होना चाहिए बट वो इंफीरियर वहां पे अवेलेबल है। अमाउंट कितना रिसीव्ड हो गया, कंटेनर का डिटेल, अगर वो स्टोर्स में है तो कहां पे वो पड़ा हुआ, कहां रखा गया है, एंड डिलीवर्ड टू नेम ऑफ द ट्रेजरी ऑफिशियल। तो ये जो भी हम बोलते हैं ना कि वेयर हाउस का जो डिटेल है वही वो डिटेल्स ऑफ कंटेनर। तो ये सारे एंट्री बैलेंस के बारे में वो अलग रजिस्टर में मेंटेन होती थी। अभी जो सिस्टम जो था उसके कुछ फ्यू पॉइंट्स जैसे बताता हूं कि हर एक टाइप के आइटम के लिए एक सेपरेट अकाउंट्स था। सैलरी जो है, हाईएस्ट सैलरी स्टेट में कितना होगा, तो 60 से लेकर के 48,000 पानाच, मतलब ये जो किंग और बहुत हाई लेवल ऑफिशियल थे उनके थे वो 48,000 पाना, मीन्स मल्टीपल ऑफ 800। सो दैट इज द लेवल ऑफ इनकम डिफरेंस मैक्सिमम। बाकी सब फिर इसी के अंदर में फॉल करेगा। स्टेट में जितने भी इंप्लॉय हैं उनकी सैलरी जो है किसी भी हालत में 25% रेवेन्यू से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब समझे क्या, इनकम गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन सब मिला करके वो 25% से ज्यादा सैलरी नहीं होगा, वो एक बाइंडिंग था। बाकी के परसेंटेज दूसरे काम के लिए खर्च होंगे। जो मटेरियल है उसका कॉस्ट पहले लेंगे, फिर प्रोसेस का कॉस्ट होगा। प्रोसेस कॉस्ट बेसिकली लेबर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये मिला करके कॉस्ट ऑफ गुड्स होता था। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्ट डिफाइंड बेस्ड ऑन द टाइम टेकन एंड ग्रेड ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का ग्रेड भी होता था, और जो प्रोसेस कॉस्ट में टाइम कितना उसमें लगता है उसके ऊपर वो डिफाइन होता था। प्रोसेस टाइम इज आल्सो डिफाइंड फॉर जनरल एंड रिपीटेटिव वर्क। जैसे बताया कि स्पेशल टाइप का जो वर्क होगा उसमें वो प्रोसेस टाइम डिफाइन नहीं होता था, वो बिटवीन दो पार्टी में वो लेट डाउन होगा। प्रोसेस लॉस कितना होगा, दैट इज इनपुट आउटपुट रेशियो वेल डिफाइन किया हुआ था। कितना है तो इतना आउटपुट मिलना ही चाहिए। मतलब जैसे धान है तो धान का चावल निकलेगा तो कितना चावल निकलेगा, कितने धान से। ऑयल है तो ऑयल सीड से कितना ऑयल निकलेगा, कितना ऑयल केक निकलेगा। तो ये सारे चीजों के रूल्स लेट डाउन किए हुए थे। द रूट्स ऑफ वेल्थ इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लैक ऑफ इट ब्रिंग मटेरियल डिस्ट्रेस। In the absence of fruitful economic activity, both current prosperity
and future growth are in danger for destruction. तो ये जो था वो वेल्थ क्रिएशन एंड वेल्थ प्रोटेक्शन स्टेट का एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी था. द ड्यूटी ऑफ स्टेट आर सेफ गार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जब भी उनको प्रॉब्लम है तो उस टाइम उसको प्रोटेक्ट करना, प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड प्रिजर्विंग द धर्मा. An ideal king is who has highest quality of leadership, intellect, energy and personal attributes. तो ये बेसिकली इस टाइप के जो गाइडिंग प्रिंसिपल थे चाणक्य के अर्थतंत्र के अंदर, जिसको जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करके या इंटरपोलेट करके रूल्स को फ्रेम करते थे वहां पे जहां पे ये कोई रूल नहीं है. तो इतना कुछ था. अभी अपन क्वेश्चन आंसर सेशन में जा सकते हैं. तो चालू कर सकते हैं, अगर जिस किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं.